gorgeous tonight, Miss Malik. Thank you so much. Okay, now we've seen you as on television at Big Boss. I've seen you in a film called Supermodel. Now, today, my producers tell me that Miss Malik is a singer. मतलब सीन क्या है और क्या क्या करना है आपको? Hey, good evening, everyone. Good evening. To be here. It's always a delight to be here. Hello, hello. It's always a delight. Pleasure to. Mike. Okay, to be here, my friend from India. बड़े देश में छोटी बातें होती हैं। It's always It's always fun to be here with you guys. Media friends, thank you so much for making my event, like second solo release, very special. You guys have always made me what I am today. So I'm really excited. I wanted to keep an event to interact with you guys, to share my experience with you guys. So here I am. Woo! Okay, yeah, better. Yes. Okay, so I get my answer. Anybody from the audience here would like to ask Miss Malik a question? Anybody from the audience here would ask to like, oh, come. Aye. What is your name? गगन गुरु। हेलो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप शादी कब करें? आज मैं यहाँ गाना गाने के लिए आई हूँ, शादी का सोच के नहीं आई हूँ। So I'm really completely blank tonight कि शादी का कुछ सोच भी नहीं है मेरे जहन में। Your question please? कब करेंगे इसे? I really don't want to talk about marriage tonight. So I want to talk about my singing and fun things. Okay, give me your number. I call you later. अच्छा मैम, एक चीज़ जानना चाहूँ। बेसिकली मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ। प्लीज। Here we go. So you think like this, probably you get some, you're gonna share my limelight too, and it's gonna help you, right? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम Yes. एक एस्टेब्लिश एक्टर के साथ सभी काम करना चाहते हैं। मेरे जैसे के साथ जैसे न्यू कमर हूँ, तुम आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी? हाँ, काम तो जरूर करना चाहूँगी, मगर ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी for sure with any random guy. हम एक दूसरे को जान सकते हैं। बाद में मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि you are a good looking guy, probably you must be a nice person too. But when it comes to working with talented people, कोई भी ऐसा शख्स जो हो सकता है वो न्यूकमर हो, मगर हो सकता है वो बहुत talented हो. So I don't mind. We might work together in future. 9867272691. What's that? I'm too bad with maths. Thank you. मुझे याद नहीं है आपका नंबर anyway. Okay, Miss Malik. What was that? Okay, now since the highlight, we are here actually because of your singing. Would you like to sing us a few lines, please? A few lines. I want to sing the complete song. Please, it will be a pleasure. My dancers! Where's the mic? Do we have a mic here? विनोद में आएगा, फोटो में आएगा। तेरे लिए तो नहीं बैठेगा भैया। ओ इमेज रेशमिया। आपने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने पोस्ट करने बंद कर दिया। थैंक यू।
अभी हम लोग सेंटर में आएंगे। That might be no. How did you guys like it? Once more. Cute. Once more. That was a stunning Thank you guys. once more. Thank you for making it so special. Hey, That was a stunning performance. thank you very much. So, Amazing. I hope you guys enjoyed it as much as I did. And now it's some time, some rum. Please enjoy the party. Thank you very much for gracing this occasion. Thank you very much. Thank you, Ms. Malik. thank you so much. And I'm coming back again tomorrow. That's good news. Well, I'm here again. It's always better direct with you guys. I'm so glad. Last year I've sung a song जो कि मैंने गाने गाया था before. खैर, बचपन से हमेशा से मेरी तमन्ना थी that I would be, one day will be a singer. But why my singing career took a backseat because I was mostly busy with my acting career and all that. तो बचपन में हमेशा मैं imagine किया करती थी कि एक दिन I'll be singing like a rock star on the stage like this. Not. I hope that does not remind you again of Umesh जी. मैंने एक गाना गाया था पिछले साल ड्रामा क्वीन. I just started with kind of fun thing. ऐसे मस्ती में मैंने शुरू किया था और it turned out to be amazing. I would like to thank you Ishq Betta and Shree जिन्होंने मेरे साथ मिलकर कोई 4 हमने ट्रैक्स के ऊपर काम किया. There's so much that I would be talking to you one-on-one for sure. And here I would like to sing that song again for you guys. Boys,
bling bling. Okay, and drama queen. Something which you have dreamt of all your life. Since I was a small kid, मैं हमेशा सोचती थी that I'm going to be a very glamorous person, and obviously that included कि मैं कभी स्टेज पर गाना भी गा रही होंगी. Well, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि my love for silver screen has been always greater than my love for singing. So that is why my singing, career and passion always took a back seat. मगर recently I decided कि मैं I will give some time to it, and उसके लिए मैं simultaneously मैं गाना भी साथ साथ जारी रखूँगी. So दूसरा जो solo है मेरा रम, that is out now. I'm happy, I'm excited. That is something I dreamt of, and well, yes, I would definitely like to talk about my my designer, my stylist today, Sonia Mehra, and Lekha Gupta is the makeup artist and my stylist. But Sonia Mehra, I would say, that is the person who's behind the entire look. जो कि पहला black dress मैंने पहना, that was kind of very international. At the same time, there was this Indian touch in it, so it was a kind of a fusion, and it gave me a lot of liberty कि उसके साथ में एक पल्लू के साथ खेल भी पाऊँ and all that. And while I was singing, I was just playing with that kind of a like a scarf or a dupatta, and yet it was classy, sexy, at the same time it was cute. So I think I really like the vision of Sonia Mehra. She's a great stylist, और उन्होंने ही मेरे दोनों looks decide किए थे आज के लिए. I'm happy that
guys liked it. You're right, आप सही कह रहे हैं। रम के और ड्रामा क्वीन के बीच में काफ़ी गैप था। असूलन मैं पूरा का पूरा एल्बम एक ही साल में रिलीज़ करना चाहती थी, 4 ट्रैक्स, लेकिन Shridi and Ishq Bector, they were also busy with a lot of films. I was also busy with a lot of films. So to somehow हम अभी भी जो रम है, मैंने कहा कि मैं हर सूरत इसको इस वक्त करना चाहूँगी, क्योंकि अगैन आगे आने वाले दिनों में मेरे बहुत सारे फिल्म फ्लोर पे जाने वाले हैं। सो आई थिंक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यू विल नॉट सी दिस मच ऑफ गैप मेरे गानों के बीच में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर 2-3 महीने के बाद मैं अपना एक गाना जो है वो रिलीज़ करूँ। आई डू रियली हैव अ ग्रेट पैशन फॉर सिंगिंग एंड स्पेशली पुराने गानों को नए तरीके से पेश करने में आई डू हैव अ लॉट। जिस तरह से मैं कहूँ कि रम का जो एक लाइन है, मुझ पे तोहमत न रख मैं शराबी नहीं, वो नज़र से पिलाए तो मैं क्या करूँ, ये हमारे एक बहुत ही मशहूर कवाल हैं अजीज़ मियाँ कवाल साहब। उनकी कवाली थी जो मैं अभी आई वॉज जस्ट स्मॉल के लाइक 6-7 साल की मैं रही होंगी जब से वो मैं उनकी कवाली मैंने सुनी थी, और मैं सोचती थी कि इट्स सो डीप एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स हैज सच अ स्पिरिचुअलिटी वाइज, उसका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट था अल्लाह ताला के साथ। सो जब हमने रम शुरू किया तो मैंने कहा वाई नॉट रम में शराबी का एक गाना जो है, एक जो लाइन है वो ऐड की जाए, मुझ पे तोहमत न रख मैं शराबी नहीं, वो नज़र से पिलाए तो मैं क्या करूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। सो I was so much in love with this line, so I wanted to add this line in my song, and it has turned out. I think Shridi and Ishq Bector has done a great job. वीना जो मैंने जो सुना है, जो मेरे पास जो खबरें हैं कि इंडस्ट्री के जो टॉप एक्टर हैं सलमान शाह, आप उनके साथ भी मतलब काम करना नहीं चाहते, ऐसी कुछ खबरें मतलब वीना इतनी एस्टैब्लिश्ड हो गई कि हर इंडस्ट्री में हर एक एक्टर के साथ में काम वीना नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसा तो खैर मैं कहूँगी ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान साहब के साथ काम करना, बिकॉज दे आर द फेस ऑफ बॉलीवुड। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि मैं कोई ऐसा रोल नहीं करना चाहूँगी जिसमें मुझे सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के रूप में आना हो और 2 गाने और 4 सीन्स करने हो। ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू डू समथिंग विच इज़ सब्सटैंशियल, which has something in it as an actor that I can explore, that I can experience, that I can show that onto the screen, and I can represent some of the women's journey. It could be from any walk of life. So the thing is that yes, I do have a great desire to work with all the Khans, मगर ज़ाहिरी बात है खान्स के साथ पीछे खड़े होके मुझे सिर्फ एक ब्यूटीफुल मैनिक्विन का रोल करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। कहीं ऐसा कि अगर आइटम सॉन्ग अगर आपको मिलता है खान से फिल्मों में तो आप नहीं करें, बिना नहीं करें? नहीं, आई हैव अ ग्रेट लव फॉर आइटम सॉन्ग्स। आइटम सॉन्ग चाहे खान्स की फिल्म में हो, रोशन्स की फिल्म में हो या बच्चन्स की फिल्म में हो, आई थिंक अगर आइटम सॉन्ग अमेजिंग होगा तो आई विल डेफिनेटली डू इट। आई डू हैव अ ग्रेट लव फॉर आइटम सॉन्ग्स बाय द वे, बट इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी एकदम छट्टाक किस्म का। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान से बहुत सारे सिंगर्स आए हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में अपने आप को मनवाया भी है। हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान के सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर उन्हें अपने आप को पेश करने का मौका मिला। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं हिंदुस्तान में आई तो एज एन एक्टर ही थी, और ये आई थिंक इट विल बी ऑब्वियसली समथिंग वेरी ग्रेट कि अगर हिंदुस्तान के लोग एज अ सिंगर भी मुझे पसंद करते हैं तो ज़ाहिरी बात है it will be a great honor for me, and I think singing is something which is something very natural. I always wanted to do it. So if people like my tracks, I understand कि शुरू में मैंने कोई इतना ही philosophy बताने की कोशिश नहीं की है गानों में। मैंने गानों को बहुत यूथफुल, सिंपल और एकदम पार्टी टाइप रखा है। अभी मैंने गानों में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कोई पैगाम देने की कोशिश की है या मैंने कोई फ़िलासफ़ी दिखाने की कोशिश की है या मैंने कोई ज़िंदगी का बहुत ही बहुत ही बड़ी फ़िलासफ़ी को अनफोल्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। अभी आगाज़ जो है बहुत हल्का फुल्का है। सो येस, आने वाले दिनों में आई वुड लाइक टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, और आने वाले दिनों में मैं और गहराई में भी जाना चाहूँगी म्यूज़िक की। अभी तो आगाज़ मोहब्बत है। So, बिना इंडियन एक्ट्रेस को वेल मुझे ज़ाती तौर पर पुराने गानों को नई तरह से पेश करने का बहुत दिल है, और मैं चाहूँगी कि
पाकिस्तान के चंद एक बहुत पुराने ट्रैक्स हैं जो शायद हिंदुस्तान में आज तक कभी एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं और हिंदुस्तान में उनके ऊपर कभी काम भी नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में भी उनके ऊपर कभी भी उनको नए तरीके से पेश नहीं किया गया है, रीमिक्स नहीं किया गया है. सो आई वुड लव टू वर्क ऑन अ फ्यू ट्रैक्स पास्ट में से, मगर इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट न्यू म्यूज़िक, लाइक जो यूथ का म्यूज़िक है, जो नया म्यूज़िक है, जो बहुत ही मॉडर्न भी है, उसमें इंडियन टच भी. जिस तरह रम एक ऐसा गाना है जिसमें आप देखेंगे इट्स वेरी मच बॉलीवुड काइंड ऑफ अ गाना एंड इट्स वेरी मच मस्ती काइंड ऑफ अ सॉन्ग. मगर आने वाले दिनों में यस आई थिंक कि जैज़, पॉप, हिप हॉप और मैं क्लासिकल को भी किसी हद तक लेकर रहूँ अपने उसको मैं गाऊँ, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव टू डू जस्टिस विद एवरी सिंगल ट्रैक. Yes, I do, intend to experiment a lot when it comes to the music in future. इंडियन एक्ट्रेस को भी कुछ मतलब कंपटीशन मतलब देना चाहते थे, प्रियंका चोपड़ा भी कुछ. See, the thing is that already I'm a global personality. I won't say that I'm just I have collaborated with Dutch guys recently. I've collaborated with a Finnish artist. I've collaborated with Dutch people. I'm working in London when it comes to fashion and all that. मगर international जाने की obviously कौन शख्स जो है वो आज global नहीं जाना चाहता. I already have that little bit of recognition as a global personality. मगर इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि मुस्तकबिल में I would like to explore. I would like to take up challenges. It's just the beginning. I will definitely love to experiment and explore. आखिरी एक सवाल, रम है तो मतलब रम पसंद करती हैं आप? और एक दिन मुझे पता था. अगर पसंद करती हैं तो एक दिन में कितने पैक लगाती हैं कुछ ये तो बताना पड़ेगा. Well, मुझे पता था कि आप लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि रम के बारे में इतनी हमने बात की है. असल में ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका तजुर्बा भी हो. आप दूसरों के तजुर्बे से भी फ़ायदा उठा सकते हैं. मेरे बहुत सारे आसपास जो लोग हैं वो रम पीने के बाद क्या महसूस करते हैं, उनके जब मैंने जज्बात देखे तो मैंने सोचा कि रम के ऊपर एक गाना बनना चाहिए. बट ख़ुद रम को मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि पीकर चढ़ती है तो वाकई शायराना दिल हो जाता है. मगर मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि जब चढ़ती है रम तो काफ़ी शायराना हो जाता है मूड. वेल नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी समथिंग अगेन. अभी आने वाले चंद एक ट्रैक्स जो मैं हैं उनको बहुत यूथफुल, ब्राइट और फन रखना चाहूँगी. 2 ट्रैक्स और हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं. एक है तेरी अखियाँ कमाल, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ पंजाबी हिंदी बॉलीवुड मिक्स, और एक है बैड बॉयज़. ये दोनों गाने जो हैं इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और बहुत जल्द इनके वीडियोस बनेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू. जी अच्छा रामी गाऊं. महर मेरा नशा चल हटा सावन की घटा, शहर में है मज़ा चल हटा सावन की घटा. महर मेरा नशा चल हटा सावन की घटा, शहर में है मज़ा चल हटा सावन की घटा. जख्म पर छिड़को तो दवा होती है शराब, खून में मिल जाए तो नशा होती है शराब, भेजे में गर ये घुस जाए गम भुला देती है शराब. Thank you.